Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our this very special class dear friend where we are going to make some important announcement about our next batch of sociology from 2026 mains point of view dear friend. So in this particular session we are going to discuss all those things that are important for you people to know about this coming course dear friend that we are going to launch from 15th of April dear friend. Before starting this session there is some information about me dear friend. My name is Pankaj Shukla and I have been teaching sociology optional since last more than 1 decade. And with regard to sociology optional, if you have any doubt, any query, you can discuss with me through these social media platforms. आपके जो भी doubts हैं, जो भी queries हैं, आप मेरे साथ discuss कर सकते हैं. In this particular session dear friend, we are going to talk about our coming batch that is going to start from 15th of April dear friend. हम जानने की कोशिश करेंगे कि how we are going to complete this entire syllabus, what is going to be our teaching method, what are the features of this course, whether there will be answer writing included in this course or not. So all these things that comes in the mind of any civil services aspirant. Through this session I am going to discuss all those aspects dear friend. इन सारे एस्पेक्ट्स को मैं आपके साथ इस सेशन के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दिस इज़ द राइट टाइम डियर फ्रेंड. ये एक सही समय है दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑप्शनल. इफ़ यू आर गोइंग टू टेक ए टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 12 to 14 मंथ, सो यही वो समय है जब आपको अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए दोस्तों. जनरली कई बार ऐसा होता है कि इन दिस प्रिपरेशन वी इग्नोर ऑप्शनल. फर्स्ट वी स्टार्ट विद जीएस, वी डिवोट इनफ टाइम टू जीएस. आफ्टर डिवोटिंग 5-6 मंथ वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑप्शनल. बट इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, अगर आप 2026 के अटेम्प्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है दोस्तों, तो ये सही समय है जब आप 4 to 5 मंथ डिवोट कर सकते हैं टू योर ऑप्शनल डियर फ्रेंड. एंड कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, we are coming up with this second batch. One batch we started last month dear friend. This second batch we are going to start on 15th of April dear friend. और देखिए जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस इफ यू सी द सिलेबस ऑफ इंटायर सोशोलॉजी ऑप्शनल, योर इंटायर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट डियर फ्रेंड, पेपर 1 and paper 2. In paper 1 there are total 10 units. In paper 2 there are total 15 units that has been divided into 3 sections. So in this course of 4.5 month dear friend, we are going to cover entire syllabus in class itself. सारा syllabus हम आपके साथ इन classes में ही cover करेंगे और इनसे related जो भी learning है we will try to cover those things in class itself. Very often it happens dear friend that students they ask कि sir my background is not from sociology. sociology का हमें कोई knowledge नहीं है. सो इतने कम टाइम में दिस इंटायर सिलेबस वेदर आई विल बी एबल टू मास्टर और नॉट. तो देखिए इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इस सिलेबस को एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच में डिज़ाइन किया है दोस्तों. इवन इफ यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ सोशोलॉजी, वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट टिल लास्ट यूनिट डियर फ्रेंड इन इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट मैनर डियर फ्रेंड. डिफरेंट एस्पेक्ट्स दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. So I shall follow this approach, that is storytelling approach. Precise content will be given dear friend and we will try to relate it with contemporary development. बहुत सारे contemporary development हो रहे हैं. कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, मणिपुर में कुछ वॉयलेंस की बात हो रही है, ट्राइब्स के ऑटोनॉमी के बारे में बात हो रही है. इन सारी चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट कर पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों. तो देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर आप इससे समझ सकते हैं कि देखिए सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, हाउ इट केम टू एग्जिस्टेंस डियर फ्रेंड, व्हाट वर दो सर्कमस्टांसेस दैट गेव राइज टू इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. वो कैसी सर्कमस्टांसेस थी, इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी केम इन टू एग्जिस्टेंस. एंड व्हेन दिस सब्जेक्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस, अदर एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन्स, इनसे इन्हें क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा. How sociology faced those challenges, it consolidated itself, how it carved out a distinct scope for itself,
In this manner, dear friend, step by step manner, we shall try to understand this subject of sociology. और अगर आप फर्स्ट 3 यूनिट्स देखें अपने पेपर 1 की, so they deal with emergence, scope, methodology of sociology. So in this manner we shall try to discuss this particular subject of sociology. बहुत ही easy तरीके से हम इसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दोस्तों. देखिए जो इम्फेसिस होगी, द इम्फेसिस विल बी ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डियर फ्रेंड. सबसे ज़्यादा देखिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं लाइक फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी. दीज आर द वेरियस स्कूल्स, वेरियस थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट विद इन सोशोलॉजी. और बिलीव करिए, इवन आफ्टर कवरिंग इंटायर सिलेबस, even after scoring good marks in mains also, very often when in interview such concepts are asked, students are not able to explain. आप इन concepts को explain नहीं कर पाते क्योंकि आपने इन्हें बस पढ़ लिया है, आपने इन्हें बस याद कर लिया है. So the most important thing of our course will be conceptual clarity, dear friend. We will try to develop a clear understanding about these concepts. We will try to give enough examples और case studies के साथ, ठीक है, या रिलेवेंट रिपोर्ट के साथ हम इन्हें सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे. क्लास में ही आपको क्लास नोट सेपरेटली दिए जाएंगे, प्रिंटेड मटेरियल आपको दिया जाएगा जहाँ पर देखिए इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज़, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे, सो दैट एट एनी स्टेज यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज. देखिए आपके अंदर ऐसा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपके पास कंटेंट की कमी है दोस्तों. देखिए आज के टाइम में देखिए problem is not that you lack content, problem is that too much content is there. और देखिए हर कंटेंट को देखकर आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे सर ने नहीं पढ़ा है. सो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट की एक फीलिंग आ जाती है दोस्तों, आप इसे फोमो बोलते हैं. तो देखिए हम आपको कोशिश करेंगे कि एक प्रिसाइज कंटेंट दें, ऐसा कंटेंट दोस्तों जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या है, यूटिलिटेरियन है. सो देयर विल बी क्लास नोट्स, देयर विल बी प्रिंटेड मटेरियल ऑल्सो. Previous year question, that is very important, dear friend. After covering every topic, we shall go into previous year questions related to that topic. देखिए previous year questions are very important. Repeatedly I have been asking you people that whatever subject you are studying, even in GS or in optional, definitely you should go through previous year questions. Previous year questions जब आप देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि related to that particular concept, from what all dimensions UPSC they can ask questions, difficulty का लेवल क्या है, किन डायमेंशन से इस कॉन्सेप्ट को कवर करने की ज़रूरत है, और उसको ध्यान में रखकर आप अपने नोट्स को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर ए काइंड ऑफ की टू एक्सप्लोर द माइंड ऑफ यूपीएससी और आपके जो पेपर सेटर हैं उनके माइंड को एक्सप्लोर करने का देखिए एक तरीका है. हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरह से आप उनके मन की बात को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं. और देखिए मोस्ट ऑफ यू, ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू, ठीक है, यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ व्हाट सोशियोलॉजी. सो इफ़ यू आर मास्टरिंग एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस, किस लेवल तक आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, किस डेप्थ तक आपको उसको पढ़ना है, हाँ, डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, देखिए इन सबके बारे में आपको आइडिया मिलता है किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को. तो हम अपनी क्लासेस में ही इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. और देखिए वेरी ऑफन इट हैपेंस दैट इवन दो यू हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कंटेम्प्रेरी इवेंट पर भी आपका अच्छा कमांड है, चीज़ों को आपने अच्छे से समझा हुआ है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन योर आंसर शीट. आप इसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं. कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, बट यू आर नॉट एबल टू पोर योर नॉलेज इन योर आंसर शीट. सो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट component of this course, dear friend. Regular sessions will be there on answer writings. We will try to frame answers. हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके साथ करेंगे और ऐसे भी क्वेश्चंस देखिए जो फ्यूचर में भी पूछे आ सकते हैं. रिपीटेडली आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट एंड गेट इट इवेल्युएटेड, डियर फ्रेंड. हाउ टू अप्रोच, देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और देखिए मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियर हैं, जो मेडिकल साइंस से हैं, MBA हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, दे टेक दिस सोशियोलॉजी ऑप्शन. एंड व्हेन यू स्टडी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जब भी आप इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कई बार आपका देखिए जो एम्फेसिस होता है वो होता है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए,
how to hit at this particular problem. In a similar manner, dear friend, in our classes, very often it may happen कि आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझा है, आपने कंटेंट को पढ़ा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, बट समटाइम्स देयर आर क्वेश्चंस दैट आर रिमोटली रिलेटेड टू व्हाट यू हैव स्टडीड. आपने चीज़ों को पढ़ा है, उससे उसका रिलेशन है बट रिमोट रिलेशन है. सो हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चन, हाउ टू हिट इट such question that you don't have a clear idea, dear friend. क्लियर कंटेंट आपके पास नहीं है, तो कैसे एक थॉट फ्रेमवर्क इनके बारे में बनाया जाए. हाउ टू राइट प्रिसाइज इंट्रोडक्शन अबाउट सच क्वेश्चन, हाउ टू राइट मेन बॉडी, हाउ टू राइट कंक्लूजन, such kind of the thought framework for those questions related to which content you have already studied, and for those questions also related to which you don't have precise content, कैसे इन्हें अटेम्प्ट किया जाए, ये भी हम इन क्लासेस में पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, इन दिस मैनर आवर एम्फेसिस विल बी ऑन आंसर राइटिंग. इनफैक्ट आंसर राइटिंग कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर दिस इंटायर कोर्स. इंडिविजुअल मेंटरशिप, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लास्ट फ्यू ईयर में आप पाएंगे कि देखिए मेंटरशिप का जो रोल है काफ़ी बढ़ा है दोस्तों. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि देखिए इन क्लासेस यू स्टडी थिंग्स, इन क्लासेस यू डेवलप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बट फिर भी ऐसा कुछ रह जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स आंसर नहीं लिखते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि इफ़ आई विल राइट प्रोबेबली इट विल नॉट बी द बेस्ट आंसर. हाँ, आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट राइटिंग, इवन इफ यू हैव रिटन you don't want to get it evaluated. So for that purpose, dear friend, there is importance of individual mentorship, and for that purpose there will be regular session with each and every student. हर स्टूडेंट के साथ मेरे रेगुलर सेशंस होंगे दोस्तों, जहाँ पर हम आपके साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल की जो निटी-ग्रिटी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. हो सकता है आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हो, कुछ स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स हो जहाँ पर आप लैग कर रहे हो, एंड फॉर दैट पर्पज डियर फ्रेंड regularly there will be mentorship session that is integral part of this course. So that is one brief idea about this course that we are going to start from 15th of April. If you are thinking about joining sociology optional course, dear friend, and you are going to target 2026 civil services examination, so you can enroll yourself in this course, and if you have any doubt on given number you can call and discuss all your queries, dear friend. Thank you to all for joining me and for staying with me, dear friends. Thank you.